Good morning, students. This is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we will discuss the next topic of unit number 2, that is application of CRO, special purpose CROs like multi-input CRO, dual trace CRO and dual beam CRO. So, starting with application of CRO. Basically, CRO is a voltmeter with a screen. It is used to measure AC voltage as well as DC voltage, AC current and DC current. It is used to measure time and phase of the waveforms and the frequency of the waveforms. It is also used in the radio applications like radio receivers and TV receivers. It is also used in medical applications. So there are many varieties of applications of CRO. We have to discuss the most important properties of CRO or the application of CRO, that is voltage measurement, frequency measurement and the time measurement. So starting with the voltage measurement using CRO. In the CRO, the vertical scale is calibrated in the volts per division or millivolts per division. And by using the scale setting of the CRO can measure peak to peak voltage of any AC signal from the formula, that is VPP equals to vertical peak to peak division into volts per division, or we can say that peak to peak equals to number of vertical division into volts per division. So by using this formula we can find out the peak to peak voltage of any AC signal. So in the next slide we have used this formula to measure the voltage of the given waveform. In the given waveform, the volt per division is given as 100 millivolt per division and the time per division is given as 0.5 milliseconds per division, and we have to calculate peak to peak voltage. So peak to peak voltage can be obtained by the formula volts per division into number of vertical division. So volts per division is given as 100 millivolt per division, and the total number of vertical division is 3.8 is this and 3.8 is this. So total number will be equal to the multiply 3.8 into 2. So it is the number of vertical division. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड टोटल डिवीजन कितने हो रहे हैं दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो दिस इज इक्वल्स टू 3.8 into 2. So the voltage for peak to peak is given as 0.76 volt. So this is the method to obtain the peak to peak voltage of a given AC signal. If we have to find out the peak voltage, then the formula will be the same, but we have to calculate the number of vertical division only for one side. So we have to take only 3.8, because voltage peak can be taken in either positive side or it can be taken or negative side. So by taking only one side we can find out the voltage peak. So the peak voltage is 0.38 volt. So there is a difference, that is for the peak to peak voltage we have to multiply number of vertical division by 2, and in the voltage peak value we have to take as it is. So these are the two formulas to find out the voltage of AC signals. This is very important measurement. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पर टाइम पर डिवीज़न भी दिया हुआ है, वोल्टेज पर डिवीज़न भी दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम जो दो वेवफॉर्म्स दिख रही है, फर्स्ट वन इज़ ग्रीन वेवफॉर्म and the second one is yellow waveform. So this is the green one is showing here, that is the peak to peak voltage, and the blue one shows is the number B, that is the peak voltage. So by using this formula we can find out the both values. Next is time and frequency measurement using CRO. First is time. Horizontal scale of the CRO can be used to measure the time in the second
मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफ्रैक्शन पीरियड से हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्केल होगी वहाँ से हमें टाइम मिलेगा, और जो वर्टिकल स्केल होगी वहाँ से हमें एम्पलीट्यूड या वोल्टेज मिलेगा। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल स्केल। द इंटरवल ऑफ अ पल्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द पल्स। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख चुके हैं, टाइम पीरियड विल बी द फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। जहाँ से पल्स स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर एंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ द पल्स। और टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस हॉरिजॉन्टल पीक टू पीक डिवीजन इनटू टाइम पर डिवीजन। So by using this formula we can find out the time period. And what is the frequency? The frequency is always inversely proportional to t, or f equals to 1 by t. So the signal frequency can be calculated by using the formula f equals to 1 by t. तो पहले हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड को 1 by t हमने कर लिया। सो वी विल फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हम टाइम और फ्रिक्वेंसी मेजर करेंगे फॉर द सेम वेव फॉर्म, जिसमें कि टाइम पर डिवीज़न कितना दिया है, 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न, 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। सो द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज टाइम पर डिवीज़न इनटू नंबर ऑफ डिवीज़न पर साइकिल। अब ये तो हमें गिवन है, टाइम पर डिवीज़न कितना दिया है, 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न, दिस इज द गिवन। और नंबर ऑफ डिवीज़न पर साइकिल कितने हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, कितने डिवीज़न हो रहे हैं, यहाँ पर 10 डिवीज़न हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ डिवीज़न पर साइकिल इज 10। सो द टाइम पीरियड और द टाइम ऑफ द पल्स इज 5 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फ्रिक्वेंसी निकालना है। सो फॉर द फॉर्मूला ऑफ द फ्रिक्वेंसी f इक्वल्स टू 1 बाय t। तो जो हम t निकाल चुके हैं उसको हमें बस 1 से डिवाइड करना है, देन विल गेट द फ्रिक्वेंसी। सो फॉर द गिवन वेव फॉर्म द टाइम पीरियड इज 5 मिली सेकेंड एंड द फ्रिक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। सो इट इज द method to obtain the time period and frequency of any AC signal. Next is the phase shift. This is also very important in terms of the waveform. The time interval between the waveform is called as the phase delay. दो वेवफॉर्म्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसमें कितना टाइम गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द phase delay. And the phase delay is measured between the midpoint at the start of each waveform. और इसी को हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू फेज डिफरेंस इन डिवीजन इनटू डिग्रीज पर डिवीजन। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस ऑफ एनी टू वेव फॉर्म्स। फेज डिफरेंस इन डिवीजन इनटू डिग्रीज पर डिवीजन। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अभी फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर सेम वेव फॉर्म ली हुई है हमने। यहाँ पर भी टाइम पर डिवीज़न इज 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न, जिसमें कि 1 साइकिल कितने का है, 10 डिवीज़न का है। एंड यहाँ पर 1 साइकिल इज 10 डिवीज़न, इट मीन्स एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम, कितने डिवीज़न ले रहा है, वो 10 डिवीज़न ले रहा है। और एक साइकिल कितने इसका होगा, टोटल 360 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज़ द 360 डिग्री। तो 1 डिवीज़न कितने का हो गया, 36 डिग्री, क्योंकि 10 डिवीज़न में हमारा 360 हो रहा है, तो 1 डिवीज़न में कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, और 2 डिवीज़न में कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। सो दिस इज़ द टाइम डिले और द फेज डिले। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टाइम डिले हो रहा है ये कितना हो रहा है, 2 डिवीज़न का, 1 and 2, दिस इज़ द टाइम डिले। सो दिस टाइम डिले कैन बी कैलकुलेट बाय 2 into 36 डिग्री। एक डिवीज़न में 36 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, तो 2 डिवीज़न में कितना डिफरेंस होगा, 72 डिग्री का। तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 वेवफॉर्म्स हमें दिख रही है, एक ग्रीन और एक ब्लू, इन दोनों के बीच में कितना डिवीज़न हो रहा है, 2 डिवीज़न।
So there will be 72-degree phase difference between the two waveforms. So it is the method to obtain the phase difference of any AC input waveforms. So these are the applications of CRO. Next is multi-input oscilloscope. Oscilloscope can have multiple input and display facilities. The most common type of multi-input oscilloscope is टू इनपुट. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑसिलोस्कोप बना हुआ है इसमें कि हम एक साथ दो इनपुट दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी इनपुट. देयर में बी 4 input, 8 input also in use, but the mostly use is 2 input. So there are two types of multi-input oscilloscope: single beam and double beam. Single beam oscilloscope can be converted into several traces. यानी कि हम सिंगल बीम को भी डिफरेंट मतलब एक साथ मल्टीपल ट्रेसेस में ले सकते हैं. एंड द सेकेंड इज डबल बीम ऑसिलोस्कोप विच में ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर नंबर ऑफ ट्रेसेस. सो मल्टी इनपुट ऑसिलोस्कोप कैन बी सिंगल बीम और इट कैन बी डबल बीम. तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टार्टिंग विद ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. बेसिकली ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप क्या होगा, दिस इज़ द सिंगल, जैसे कि अभी हमने देखा था सिंगल बीम ऑसिलोस्कोप रहेगा, लेकिन हम इसमें एक साथ दो ट्रेसेस ले सकते हैं. इसका नाम भी है ड्यूअल ट्रेस. इट मीन्स एट द सेम टाइम वी कैन ऑब्टेन 2 traces ऑन द स्क्रीन. ट्रेसेस मीन्स क्या होता है, द ग्राफ यूजुअली कॉल्ड द ट्रेस इज drawn by a beam of electrons striking the phosphor coating of the screen, making it emit light, usually green or blue. This is similar to the way a television picture is produced. जो कि हमें यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे कि इसको हम ट्रेसेस बोल रहे हैं, यानी कि जो वेवफॉर्म हमें दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेसेस. दिस इज द ट्रेसेस. जो ग्राफ पे प्लॉट हो रहा है, दिस ऑल आर कॉल्ड एज ट्रेसेस. तो हम एक साथ दो वेवफॉर्म्स को यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं या ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं. तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. एंड व्हाट इज एन ऑसिलोस्कोप, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द विजुअल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज ऑसिलोस्कोप. एंड द विजुअल प्रेजेंटेशन इज नोन एज वेवफॉर्म. तो एक साथ अगर हम दो वेवफॉर्म्स को ट्रेस कर पा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल ट्रेस. The working of dual trace oscilloscope. सिंगल ट्रेस ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, हम एक बार में केवल एक ही वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं. बट इन ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप वी कैन डिस्प्ले 2 traces ऑन द स्क्रीन, अलाउइंग यू टू इजीली कंपेयर द इनपुट एंड आउटपुट. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर एक इनपुट वेवफॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ वन इज एम्पलीफायर इनपुट एंड इट इज़ द आउटपुट. लेकिन ड्यूअल, हम अगर सिंगल ट्रेस पे काम करेंगे तो हम या तो इनपुट को देख सकते हैं या फिर आउटपुट को देख सकते हैं. लेकिन अगर हम ड्यूअल ट्रेस पे काम कर रहे हैं, सो वी कैन प्लॉट बोथ द वेवफॉर्म ऑन अ सिंगल स्क्रीन. तो ये आउटपुट हो गया और ये वाला इनपुट हो गया. तो इस तरीके से हम एक साथ दो ट्रेसेस को प्लॉट कर सकते हैं. सो वी कैन यूज ड्यूअल ट्रेस टू कंपेयर टू वेवफॉर्म्स ईजीली. जैसा कि यहाँ पर हमने कंपेयर किया है इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सिंगल ट्रेस में एक सिंगल वेवफॉर्म मिलेगी और ड्यूअल ट्रेस में एक ही साथ हमें दो वेवफॉर्म मिलेगी. सो इट इज़ द सेकेंड, दिस डायग्राम इज द इनपुट एंड आउटपुट कंपेरिजन ऑन द ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. सो इट इज़ वेरी इजी मेथड टू कंपेयर टू वेवफॉर्म्स साइमल्टेनियसली. प्रैक्टिकल्स में हम जो यूज़ करेंगे ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, वो इस तरीके का रहेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक साथ दो वेवफॉर्म्स यहाँ पर मिल रही है. हमने जो भी इनपुट दिया है उसके लिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा, वो हम एक साथ ही चेक कर सकते हैं. और हमें कौन सा इनपुट ऊपर रखना है, कौन सी वेवफॉर्म में ऊपर रखना है, इनपुट को रखना है कि आउटपुट को रखना है, वो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं. सो इट इज़ द प्रैक्टिकल
view of dual trace oscilloscope or DTO. Next is the block diagram. Block diagram of oscilloscope. It is the block diagram of dual trace oscilloscope. It consists of two separate channels A and B, and there are separate attenuator and pre-amplifier stages. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, पे दो चैनल काम कर रहे हैं एक साथ. ये सिंगल बीम रहेगा, बट इट विल बी शेयर्ड बाय टू चैनल्स. और दोनों चैनल्स में क्या क्या वर्किंग होगी, यहाँ पे प्री एम्पलीफिकेशन होगा और एटेन्यूएशन भी होगा. सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच इनपुट इज it can be viewed on the oscilloscope, and it can be individually controlled. After pre-amplification, two channels meet at the electronic switch. यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसमें कि कौन से चैनल को हमें आगे पास करना है वो यहाँ पर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. So this switch has the ability to pass one channel at a time into the vertical amplifier via the delay line. किस तरीके से वर्क करेगा ये? एक सिंगल बीम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से आएगी, उस सिंगल बीम को ये दोनों चैनल शेयर करेंगे, और एट अ टाइम ओनली वन चैनल कैन बी एट द वर्टिकल एम्पलीफायर वाया द डिले लाइन एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्विच. सो simultaneously we can take both the waveforms from channel A and channel B. यहाँ पर बाकी वर्किंग सेम रहेगी. बाकी इलेक्ट्रॉन गन से आने के बाद यहाँ पर केवल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे चेंज होगा, बट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम विल बी सेम. जो भी चैनल यहाँ से सेलेक्ट होगा वो कहाँ कनेक्ट होगा? ट्रिगर सर्किट में उसका इनपुट जाएगा, और वहाँ से स्वीप जनरेटर में, और वहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से कहाँ जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर. यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम विल बी सेम. द ओनली डिफरेंस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम. हम एक साथ यहाँ पर दो चैनल्स यूज़ कर रहे हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए. एक समय पे एक चैनल काम करेगा और उसके बाद अल्टरनेटली, या हम इसको अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं विच चैनल हैज़ टू बी एट द वर्टिकल एम्पलीफायर. और वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट कहाँ जाएगा? एट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जैसे कि यहाँ पे जा रहा हुआ है. और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट कहाँ जाएगा? एट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. तो यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क होगा. तो हमें कौन सा मोड चूज़ करना है वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं. एक कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है वो हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच से सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप. ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप कैन वर्क इन द टू मोड्स, ऑल्टरनेट मोड एंड द चॉप मोड. जैसे कि नाम से क्लियर है, अल्टरनेट मोड में हम 1 by 1 चैनल्स को कनेक्ट करेंगे, और चॉप मोड में हम उसको टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज अल्टरनेट मोड. In this mode, the electronic switch alternates between the channel A and B. So, each of the channel will be having one cycle of horizontal sweep. यानी कि फर्स्ट साइकिल में चैनल A जाएगा तो सेकंड साइकिल में चैनल B जाएगा. इस तरह से हर चैनल के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्वीप की साइकिल मिलेगी. The change in the electronic switch from one channel to the other will be occur at the flyback sweep duration. जैसा कि हम यहाँ पे इसके वेवफॉर्म में देख सकते हैं. यहाँ पर इनिशियली हम चैनल ए में काम कर रहे हैं. दिस इज चैनल नंबर ए एंड दिस इज द चैनल नंबर बी. और यहाँ पर ये जो वोल्टेज हम ले रहे हैं यहाँ, दिस इज़ द फ्लाईबैक टाइम एंड दिस इज़ द होल्ड टाइम. तो जब भी चैनल चेंज होगा वो कब चेंज होगा? ओनली एट द फ्लाईबैक पीरियड. तो इनिशियली चैनल ए चल रहा था, उसके बाद फ्लाईबैक के समय चैनल बी स्टार्ट हो गया. So in this waveform, it is clear that for the alternate mode, the first number waveform is the waveform for the horizontal sweep voltage or the sawtooth waveform from the sweep generator. Then the second waveform is for the channel A and the third waveform is for the channel B.
सो वेन एवर द फ्लाईबैक पीरियड विल कम द चैनल विल बी चेंज, क्योंकि फ्लाईबैक पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन बीम रहेगी दैट विल बिकम इनविजिबल। तो यहाँ पर हम चेंज ओवर कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी ईजी। और यहाँ पे जो डिस्प्ले रहेगा उसमें हमें कंटिन्यूएशन में डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि फ्लाईबैक पीरियड में हमने चेंज किया है तो डिस्प्ले में शो नहीं होगा। सो वी विल गेट द कंटिन्यूस वेव फॉर्म एट द आउटपुट और द ग्रिड कंट्रोल वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो एक कंटिन्यूस सिग्नल रहेगा। तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द ऑल्टरनेट मोड ऑफ द ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पर भी जब यहाँ पे एंड हुआ है उसी समय पे सेकंड वाला स्टार्ट हुआ है। जब फर्स्ट वाले का रिट्रेस हो गया देन द सेकंड विल बी स्टार्ट टू राइज। सो एट दिस ड्यूरेशन इट हैज़ टू स्टार्ट, यानी जब एक साइकिल ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट साइकिल ख़त्म होगा तो चैनल ए की साइकिल एंड हो गई, उसके बाद ही चैनल बी का स्टार्टिंग होगा। सो इट इज़ द मैथड फॉर द अल्टरनेट ऑपरेशन ऑफ द ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। At the flyback period, the electron will be invisible and so the changeover from one channel to the other, जैसा कि अभी हमने वेवफॉर्म में देखा हुआ है। Hence, a complete sweep signal from one vertical channel will be displayed at the screen, while for the next sweep, the signal from another vertical channel will be displayed. The screen will show a stable display of both the waveform at the channel A and B. The alternate मोड के नॉट बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। इसका ये डिसएडवांटेज ये है कि लो फ्रिक्वेंसी पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे ही इसका अल्टरनेटिंग जो ऑपरेशन है वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। लो फ्रिक्वेंसी पे अल्टरनेट मोड में प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम उसको जो डिस्प्ले रहेगा वो कंटिन्यूस डिस्प्ले हमें नहीं मिलेगा। तो एक बार इसकी वेवफॉर्म और हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने थ्योरी डिस्कस की है। फर्स्ट इज़ द हॉरिजॉन्टल स्वीप वोल्टेज जो कि हमें स्वीप जनरेटर से मिल रहा है, जिसमें कि हमें सॉटूथ वेवफॉर्म मिलेगा। सेकंड वेवफॉर्म में चैनल ए को शो किया है, थर्ड में चैनल बी को शो किया है एंड द फोर्थ वन इज़ द आउटपुट ऑफ द वोल्टेज जो कि हमें स्क्रीन पे शो होगा, डिस्प्ले जो मिलेगा। तो जब भी हम चैनल को चेंज करेंगे वो कब चेंज करेंगे, ओनली एट द फ्लाईबैक टाइम, क्योंकि इस समय पर हमें इलेक्ट्रॉन बीम का डिस्प्ले नहीं मिलता है क्योंकि वो रिट्रेसिंग पीरियड है। सो वी विल गेट द आउटपुट on the screen like a continuous waveform. So it's all about the alternate mode. Next is the chop mode. In this mode, the electron switch works at a high frequency of the order of 100 kHz to 500 kHz. The result is that small segments from the channel A and B are connected in a continuous manner to the vertical amplifier and display in the screen. When the chopping rate is faster than the rate of the horizontal sweep, then the separately chopped segment will be merged and recombined to form originally applied channel A and B waveform at the screen of the CRT. But if the chopping rate is lesser than the sweep rate, then it will definitely lead to the discontinuity of the display. So, in such cases, alternate mode is more suitable. जब चॉपिंग रेट ज़्यादा होगा स्वीप रेट से, यानी कि स्वीप जनरेटर से जो हमें वोल्टेज मिल रहा है उससे ज़्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि चॉप मोड की वर्किंग बेटर होगी। बट इफ़ द चॉपिंग रेट इज़ लेसर देन द स्वीप रेट और द वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द स्वीप जनरेटर, तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वी हैव टू यूज़ ऑल्टरनेट मोड। सो इट इज़ द चॉप मोड वेव फॉर्म। हम यहाँ पे देख सकते हैं चॉप मोड में क्या हो रहा है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, हॉरिजॉन्टल स्वीप वोल्टेज है, फर्स्ट वेव फॉर्म इज द हॉरिजॉन्टल स्वीप वोल्टेज, द सेकेंड वेव फॉर्म इज द, हमने यहाँ पर पूरी वेव फॉर्म को चॉप कर दिया, यानी कि हमने उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, हमने उसको ब्रेक कर दिया। जैसे कि फर्स्ट वन में क्या था, अल्टरनेट में हमने उसको कंप्लीटली पास किया था, बट इन दिस टाइप ऑफ मोड वी हैव टू चॉप द वेव फॉर्म इन द स्मॉल सेगमेंट्स। कंसेप्ट वही रहेगा, चैनल ए का ही गया, उसके बाद नेक्स्ट इसमें कौन सा जाएगा, चैनल बी का जाएगा, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। फर्स्ट में हमने उसको जो वेवफॉर्म को हमने किस तरीके से सेंड किया था, वन बाय वन, यानी कि हमने उसमें साइकिल के लिए पूरा पीरियड खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट पीरियड में हमने चैनल को चेंज किया था। बट इन दिस केस वी विल चेंज बाय सेगमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द चॉप मोड।
जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में ये गया, उसके बाद जब इसका एंड होगा एट दिस टाइम दिस विल बी स्टार्ट, उसके बाद जब इसका एंड होगा एट दिस टाइम द सेकेंड वन विल बी स्टार्ट, जब इसका एंड होगा एट दिस टाइम दिस विल बी स्टार्ट। तो चैनल ए का एंडिंग टाइम और चैनल बी का स्टार्टिंग टाइम सेम रहेगा। तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, वी विल गेट द कंटिन्यूअस डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सो द कंसेप्ट विल बी सेम, when the channel A is over, after that the channel B segment will be start. The only difference in the alternate mode and the chopping mode is that in the alternate mode we are working on a full cycle of channel A and B, but in the chopping mode or chop mode we are working on the small segments one by one. So it is the chop mode dual trace oscilloscope. तो यहाँ पर हमने दोनों देख लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम और उसके दोनों मोड्स, ऑल्टरनेट मोड एंड द चॉप मोड। नेक्स्ट वन इज ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मल्टी इनपुट दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल बीम एंड डबल बीम। सो डबल बीम और ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप विल बी डिस्कस हियर। जो ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप था दैट वाज अ सिंगल बीम. In that case we are getting two traces from a single beam. पर dual beam में क्या रहेगा, we are generating here double beams. So what is the concept of dual beam oscilloscope? The dual beam oscilloscope emits two electron beams that can be displayed simultaneously on a single oscilloscope, which could be individually or jointly controlled. A special dual beam CRT generates and deflects two beams separately. ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बीम्स रहेंगी जो कि एक साथ डिस्प्ले देगी एक ही सिंगल स्क्रीन पर, और इन दोनों बीम्स को हम इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रहता है, स्पेशल ड्यूअल बीम CRT यूज़ किया जाता है दैट कैन जनरेट एंड डिफ्लेक्ट्स टू बीम सेपरेटली. Unlike an ordinary dual trace oscilloscope which use single electron beam in a time sharing, and that causes the losing of 50% amount of each signal. But in dual beam oscilloscope simultaneously produce two separate electron beams, and that can be able to capture entirely of both signals. So this is the difference between the dual trace and the dual beam. Dual trace में हम एक ही बीम को शेयर करते हैं दो चैनल्स में, और इस कारण से अबाउट 50% हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल है वो हमारा लॉस हो जाता है. बट इन ड्यूअल बीम वी आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन बीम्स, और इस तरीके से हम कंप्लीट 100% सिग्नल्स को अचीव कर सकते हैं. Also, dual trace oscilloscope cannot capture two fast transient events, as it cannot switch quickly through between the traces. Dual trace oscilloscope वर्किंग हमने देखी अभी, जिसमें कि we have to switch between the channel A and B. अगर वहाँ पर transient change हो रहा है, that cannot be traced easily by using dual trace. But to avoid this problem, we can use dual beam oscilloscope. Construction of the dual beam oscilloscope. The dual beam oscilloscope has two separate electron beams and therefore two completely separate vertical channels. यहाँ पर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन बीम रहेंगी और वहाँ पर इन दोनों बीम्स को कंट्रोल करने के लिए दो अलग वर्टिकल चैनल्स को हम यूज़ करेंगे. Each channel consists of a pre-amplifier and attenuator. There is a single set of horizontal plates and a single time based circuit. बेसिकली हम यहाँ पर दो सेट भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल सेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ फॉर द सिंगल सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड द टाइम बेस्ड सर्किट. द स्वीप जनरेटर ड्राइव्स द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर विच इन टर्न ड्राइव द प्लेट्स. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो स्वीप जनरेटर से आउटपुट जाएगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से आउटपुट कहाँ जाएगा, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में. द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स sweep both the beams across the screen at the same rate. अब उसके बाद जब दोनों beams synchronize हो जाएंगी, that will be sweep at the same rate by the horizontal plates. It is the block diagram of dual beam oscilloscope.
यहाँ पर हम स्पेशल CRT यूज़ करते हैं that can be used to separate electron gun, or it can use a single electron gun with the beam splitter. तो यहाँ पर जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, दो सिग्नल्स यहाँ पे आएंगे. दो सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं? दीज आर द टू different beams, first electron beam and the second electron beam. That's why it is called as the dual beam or the double beam oscilloscope. Each electron beam has its own vertical deflection plates. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट बीम यहाँ से गई, ये पूरा सेट एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम का हो गया फर्स्ट वाले के लिए, और ये दूसरे वाले के लिए हो गया. तो यहाँ ऐसे यहाँ पर दो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम काम करेंगे. And each one is having pre-amplifier and attenuator, delay line, vertical amplifier and then vertical deflection plates. इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए भी है. सेकंड वाला भी कहाँ कनेक्ट हो रहा है? एट द सेकंड पेयर ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. तो यहाँ पर दो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम काम करेंगे और दोनों पे अलग अलग बीम्स जाएंगी, बट we can use a single horizontal deflection system to control the both the beams. यहाँ पे हमने कॉमन हॉरिजॉन्टल बेस यूज़ किया है, बट कुछ केसेस में या कुछ सिस्टम्स में हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज द डायग्राम फॉर द ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप विद अ कॉमन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम. तो कंसेप्ट वही रहेगा, जो बीम आएगी वो अलग अलग प्लेट्स पे जाएगी, लेकिन उसके बाद उसको सिंक्रोनाइज करके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से फिर स्क्रीन पे लेंगे. तो एक साथ यहाँ पर हम दो बीम्स यहाँ पर हमें डिस्प्ले में मिलेगी. सो ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप विल डिस्प्ले टू साइमल्टेनियस सिग्नल. इट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ सर्किट बोथ विल बी एग्जिबिटेड ऑन द सेम स्क्रीन. जैसे कि यहाँ पे हमने दो बीम्स यूज़ किए हैं, तो एक साथ हमें स्क्रीन पर यहाँ पर we can see both the beams simultaneously. ड्यूअल ट्रेस और ड्यूअल बीम में क्या डिफरेंस है? ड्यूअल ट्रेस में सिंगल बीम रहेगी और उस सिंगल बीम को हम दो चैनल्स पे शेयर करेंगे, और ड्यूअल बीम में इनिशियली हम यहाँ पर दो बीम्स लेके चलेंगे, और दो बीम्स के लिए हमने दो अलग अलग वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ड्यूअल ट्रेस एंड द ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप. In dual beam CRO, two channels can have common time based system और independent. जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम कॉमन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम भी ले सकते हैं, या टाइम बेस्ड सिस्टम भी ले सकते हैं, और इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं. इन द कॉमन टाइम बेस्ड सिस्टम ओनली वन बीम इज सिंक्रोनाइज एट अ टाइम. सो इन दैट केस बोथ इनपुट्स मस्ट हैव सेम फ्रिक्वेंसी. अगर हम एक ही टाइम बेस पे काम कर रहे हैं दोनों के लिए, तो दोनों बीम्स को हमें आपस में सिंक्रोनाइज करना necessary है. In the case of the independent time based system or the horizontal deflection system, that can allow different sweep rates for the both the beams. तो यहाँ पर ये हमारे पास फ्रीडम रहेगा कि हम यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग स्वीप रेट पे अलग अलग स्वीप जनरेटर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो दोनों का स्वीप रेट हम यहाँ पर डिफरेंट रख सकते हैं. बट इन केस ऑफ कॉमन टाइम बेस्ड सिस्टम we have to synchronize both the beam at the same frequency. अब किस तरीके से हम ड्यूअल बीम यहाँ पे क्रिएट करेंगे? सो देर आर टू मेथड्स आर यूज फॉर जनरेटिंग द टू इलेक्ट्रॉन बीम्स विद इन द CRT. फर्स्ट वन इज डबल गन ट्यूब एंड द सेकेंड इज द स्प्लिट बीम. डबल गन ट्यूब विल यूज टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन गन. जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे दो गन यूज़ करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन गन से हमें दो अलग अलग बीम्स मिलेंगी. दिस मेथड अलाउज द ब्राइटनेस एंड फोकस ऑफ ईच बीम टू बी कंट्रोल्ड सेपरेटली. यहाँ पे दोनों डिफरेंट बीम्स रहेंगी जो कि डिफरेंट गन से आ रही है. सो वी कैन यूज़ और वी कैन कंट्रोल ईच बीम सेपरेटली. दोनों के ब्राइटनेस को, फोकस को हम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं. इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि दो इलेक्ट्रॉन गन हम यूज़ करेंगे, सो इट बिकम्स बल्कियर देन द स्प्लिट बीम. इसके कारण इसका CRT का वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. द अनदर मेथड इज द स्प्लिट बीम. इन द स्प्लिट बीम सिंगल इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड.
and a horizontal splitter plate is placed between the last anode and the vertical deflection plate. यहाँ पे हम एक ही बीम को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, एक हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर यूज़ किया है, जो कि कहाँ रहेगा, द लास्ट एनोड एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में. लास्ट एनोड मीन्स द सेकेंड एक्सेलरेटिंग एनोड and the vertical diffraction plate, and this plate is held at the same potential as the anode and it goes along the length of the tube between the two vertical deflection plates which isolate the channel. तो यहाँ पर हम स्प्लिट बीम के लिए क्या करेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करेंगे और उससे जो बीम क्रिएट होगी उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर. The drawback of this system is that this arrangement will have half of the brightness of the जो सिंगल बीम्स हमें मिल रही थी उससे हमें आधी ब्राइटनेस यहाँ पे मिलेगी. एंड द टू डिस्प्ले में हैव नोटिसेबली डिफरेंट ब्राइटनेस. जैसे कि हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं तो ये वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों बीम्स की ब्राइटनेस अलग अलग हो, जिससे कि डिस्प्ले जो हमें मिलेगा वो भी अलग अलग ब्राइटनेस का रहेगा. सो दीज आर द टू ड्रॉबैक ऑफ स्प्लिट बीम CRT. सो ड्यूअल बीम ऑसिलोस्कोप में क्या प्रिंसिपल है, यहाँ पर डबल बीम हमें मिलेगा डिस्प्ले में. डबल बीम को क्रिएट करने के लिए हम स्पेशल CRT यूज़ करते हैं. स्पेशल CRT में क्या प्रिंसिपल रहेगा, वी कैन यूज़ डबल इलेक्ट्रॉन गन और वी कैन यूज़ स्प्लिट बीम. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्यूअल ट्रेस एंड ड्यूअल बीम, हम एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर. Dual trace use single beam and dual beam works on the principle of double beam. So this is all about this lecture. Thank you.